नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। KT रामाराव के पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के 1 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की क़यादत में पार्टी के कायदीन ने दरगाह यूसुफैन में हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाई। उनके हमरा सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन, कॉरपोरेटर्स ममता गुप्ता, परमेश्वरी सिंह, साबिक सदरनशीन सटविन इनायत अली बाखरी, वक्फ बोर्ड कारकुन वहीद अहमद, अबरार हसन और दूसरे भी थे। रियासती वज़ीर एंड हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज जियागुड़े में रंगनाथन स्वामी मंदिर में पूजा की और फिर वाईकुंठा एकादशी प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा कारपोरेटर्स M कृष्णा, मुकेश सिंह और दूसरे भी थे। పవిత్రమైనటువంటి వైకుంఠ ఏకాదశి 6వ తేదీన మరి జియాగూడ అనేటువంటిది శేషాచారి కుటుంబ సభ్యుల సౌజన్యంతో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి అక్కడ తిరుమలలో జరిగేటువంటి వైకుంఠ ఏకాదశి తర్వాత ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా జరుగుతుందంటే జియాగూడ ప్రాంతం కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తుల సమక్షంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే వైకుంఠ ఏకాదశి ఒక పవిత్రమైనటువంటి రోజు. మరి ఆ రోజు స్వామివారిని దర్శించుకుంటే శుభం జరుగుతుంది అనేటువంటి నానుడి ఇది తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటిది. అయితే తిరుమలకు వెళ్ళలేనటువంటి వాళ్ళంతా మరి జియాగూడ ప్రాంతంలో దర్శనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆ రోజు కూడా చూస్తే తిరుమలలో కూడా కొన్ని లక్షలాది మంది అక్కడ వస్తారు. ఆ తర్వాత జియాగూడనే నమ్ముకుంటారు. జనరల్గా పబ్లిక్లో కూడా ఏంటంటే జియాగూడలో ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటిది మొదటి నుంచి ఉంది. అయితే గడిచిన 6 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని పండుగలు కూడా బ్రహ్మాండంగా జరగాలి, రెండోది ఇటువంటి హిస్టారికల్ పండుగలు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా జరగాలనేది వారి యొక్క డైరెక్షన్. మరి దానికి అనుగుణంగానే ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరి అధికారుల సహకారం, స్థానికంగా ఉండేటువంటి కార్పొరేటర్లు, రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ అందరి సహకారం తీసుకొని రెండోది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఈరోజు మీకు GHMC కానివ్వండి, వాటర్ వర్క్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు మరి ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు పోలీసు, ట్రాఫిక్ అందరి ఎండోన్మెంటు ఈ విధంగా అందరి సహకారం, R&B బ్యారికేడింగ్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, రెండోది మంచిగా డెకరేషన్ కూడా జరిగేటువంటిది. కాబట్టి మరి ఈ బ్రహ్మాండంగా జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ పరంగా రెండోది శేషాచారి కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వేడుక. కాబట్టి భక్తులందరూ విచ్చేసి కొంతమందికి ఏంటంటే లక్షల మంది వస్తారు, మాకు దర్శనం దొరకదనేటువంటి భావన ఉండేది. మీరు రండి, అందరికీ కూడా సౌకర్యాలు ఈ చుట్టుపక్కల రోడ్స్ కానివ్వండి, సివరేజ్ కానివ్వండి, వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఎలక్ట్రిసిటీ, ట్రాఫిక్ సిస్టమ్, మరి అదేవిధంగా టీమ్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎవరికి ఎటువంటి ఆటంకాలు, ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకుంటాం. తప్పకుండా మంచి ఆర్గనైజర్స్ కూడా ఉన్నారు, ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు, వారితో పాటు సేవా గుణం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కొంతమంది దానం చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు మీడియాది కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఇక్కడ. ఇక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, సోషల్ మీడియా కూడా మీ పాత్ర కూడా కీలకమైనటువంటిది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇటువంటి పండుగల్ని మీరు ప్రోత్సహించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా మాత్రం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల సహకారం తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా ఇబ్బందులు లేకుండా గడిచిన 6 సంవత్సరాలు, అంతకుముందు అయితే ఎవరు పట్టించుకోలేదు, జియాగూడ మీకు అందరికీ తెలుసు. బట్ ఈ 6 సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారుల సహకారంతో చాలా జాగ్రత్తగా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. దీంట్లో ఏంటంటే కొంత వరకు ఎవరైతే ఇక్కడ సర్వీస్ చేసేటువంటి అధికారులు, ఇక్కడ సర్వీస్ చేసేటువంటి కార్పొరేటర్లు, కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాంతోపాటు మీ మీడియా మీకు కొంత స్పెసిఫిక్ టైం కేటాయించాలని చెప్పేసి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికి మీకు వాళ్ళు అప్రాపరేట్ టైం లోపల మీకు వాళ్ళు
మీకు సపరేట్గా కార్డ్స్ ఇచ్చి అది ఇన్ఫామ్ చేస్తారు. ఆ టైమింగ్ మాత్రం ఎవరికి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి 2 నుంచి 4 గంటల సమయం, ఆ సమయంలో దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటారు. रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मजलिस पर तरमीमी कानून शहरियत से मुतालिक गलत बातें फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उनका मकसद आवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा करना है और उसका सियासी फ़ायदा उठाना है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि अपोजिशन जमातें आवाम को CAA के बारे में उकसा रही है, जिससे मुल्क में हर तरफ एहतजाज का दौरा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज और मुखालिफत का हक सबको हासिल है, मगर उसका भी कोई पैमाना होना चाहिए। शहरियत कानून से 3 मुल्कों के शहरियों को हिंदुस्तान में शहरियत दी जाने वाली है। किसी दूसरे की शहरियत छीनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अवाम को इस हक़ाइक़ से छुपाया जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को चैलेंज करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एंटी मुस्लिम क्या है हमको बता दीजिए। आप बिना पढ़ के और राजकीय एक्सपीडियंसी के लिए, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए आप जो वातावरण क्रिएट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो सेल्फ गोल हो जाएगा, वो वापस आपको ही डिस्ट्रॉय करेगा। हम मानते हैं कि सोनिया गांधी जी इटालियन हिस्ट्री जानती है मगर इंडियन हिस्ट्री जानती ही नहीं। गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह तक ये जो शरणार्थियों को पौरसत्व देने का चीज है उस पर डिमांड हुआ है। गांधी जी ने खुल के बोला है कि इन लोगों को पौरसत्व मिलना चाहिए और ये हमारा बाध्यता है। जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो किए ही नहीं। जो नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट है उसको तो अमल तो किया ही नहीं। जब मोदी जी अमल कर रहा है, जो मोदी जी इतने सारे लोगों को पौरसत्व देने का इनिशिएटिव लिया है जो 70 ईयर्स से पेंडिंग है, इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिम यू आर ट्राइंग टू अटैक हिम। आप मत गर्जना की वातावरण पैदा करने के लिए सोच रहे हैं। आप इससे आपका संस्कृति क्या है, आपका विधान क्या है, ये तो पूरा देश को मालूम पड़ रहा है। और हम ये भी बोलते हैं जैसा आप इजी टारगेट्स को, इजी ग्रुप्स को जो मैल्युएबल है उनको टारगेट करके यूनिवर्सिटीज में जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हो, उससे जाहिर होता है कि आप एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसा, कांग्रेस एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसा बर्ताव कर रही है, नॉट एज अ नेशनल पार्टी। एंड वी आर चैलेंजिंग कांग्रेस पार्टी कि आप क्या कर सकते हो इस लॉ को लेके, क्या पॉलिटिकल एडवांटेज आप ले सकते हो। आप जाइए, देश के पास जाइए और जितना आप मिसलीड कर सकते हैं करिए, देश आपको रिजेक्ट करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के मुजवजा दौरे के पेश नज़र GHMC के अहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल कमिश्नर्स AK सिंह, शरवती ओझा, विजयलक्ष्मी, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विंग के विश्वजीत, जोनल कमिश्नर ममता, चीफ वेटरनरी ऑफिसर वेंकटेश्वर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने बल्दिया अहदेदारों से कहा कि वो कंटोनमेंट बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ इश्तराक व ताउन करते हुए खुसूसी इंतजाम करें। बल्कि और पीने की 24 घंटे सरबराही को यकीनी बनाया जाए। हकीमपेट एयरपोर्ट पर आरजी टॉयलेट्स फराहम किए जाएं। साथ ही साथ वक्फे वक्फे से कचरे की निकासी अमल में लाई जाए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर।
DLRL Main Road, opposite Vikas High School, Chandrayaan Gutta, Hyderabad. Cell 9966930824 या 9391326261. रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज वेयरहाउस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया और नए गोदामों की तामीर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोदामों की अदम दस्तियाबी के सबब हर साल करोड़ों रुपए का अनाज ज़ाय होता है। किसानों से हासिल करदा अनाज रखने के लिए गोदामों की जरूरत दरपेश है। साबिक वजीर और कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की आबकारी पॉलिसी को निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिर्फ शराब की आमदनी पर इन्हिसार कर रहे हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान रियासती हुकूमतों को शराब से होने वाली आमदनी 10 लाख करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ लाख हो गई है। जीवन रेड्डी ने कहा कि आज हर 4 कदम पर शराब की दुकानात और परमिट रूम पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत धड़ाधड़ शराब के लाइसेंस जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में क्राइम की शरह में और गैर अखलाकी हरकतों में इजाफे की बुनियादी वजह शराब और शराबनोशी का आम हो जाना है। पूरी हिंदुस्तान में रिसेशन, जो आमदनी गिर जा रहे, रोजगारी कम हो जा रहे बोल के बोले रहे। अपने रियासत में भी ये रिसेशन की वजह से यहाँ पे हुकूमत को जितने इनकम बजट आना चाहिए तो नहीं आ सके बोल के एक तरफ बोल, मगर दूसरी तरफ जो है जब तेलंगाना अलग रियासत बने, तेलंगाना हुकूमत की आबकारी जो इनकम 10,000 करोड़ था सर, आज जो है वो 25,000 करोड़ बन रहे। कहां 10,000 करोड़, कहां 25,000 करोड़। कल तक जो 20-21,000 करोड़ थे उसको और बढ़ाने के वास्ते और शराब 10-20% बढ़ाया सर, कई को आमदनी बढ़ाने के वास्ते ये प्रोहिबिशन एंड एक्साइज जो है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है सर? शराब पीना कम करना, शराब आदत कम करना। तुम एक तरफ तो प्रोहिबिशन बोलते, शराब की आदत कम करना बोल के, दूसरी तरफ जो है शराब को जो है इसको एक आमदनी सेगा जैसा अब 10,000 से 25,000 करोड़ ले गए। मतलब क्या है? 150% बढ़ गए, 150% बढ़ गए सर। अब देहात में जिधर देखो उधर बेल्ट शॉप है, जिधर देखो उधर एक एक गांव में 10-20 बेल्ट शॉप। तुम आधी रात जाओ, तुम चाय मिलते नहीं मिलते कि मगर शराब तो मिलते सर। अब कौन से भी गांव जाओ, आधी रात दरवाजा खटखटाओ, शराब मिल जाते तुमको। हर गांव में बेल्ट शॉप। कैसा पहन रहे ये बेल्ट शॉप, कैसा चल रहा है? क्या इसकी जिम्मेदार आप नहीं होते क्या सर? इसकी जिम्मेदार कौन है? आप होते या नहीं? आप शराब पीना बुरा है या शराब बेहतर है? एक तरफ शराब बुरा है बोल के बोलते, शराब से इंसान की तबीयत खराब हो जाते और उनकी पूरी आमदनी उस तरफ ही चले जाते। आज जो है 25,000 करोड़ अगर हुकूमत को आमदनी आए तो कम से कम पीने की दवा एक 25,000 करोड़ के रहते सर। 25,000 करोड़ जो है आमदनी रहे तो इसमें पीने की जो नशा रहते ना सर, शराब, ये 25,000 करोड़। मतलब हुकूमत की आमदनी 25,000 करोड़ है तो ये अंदर की 25,000 करोड़ कितने होते? 25 और 50,000 करोड़। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर आमदनी मुनाफा लेने वाले वो एक 10,000 करोड़।
मतलब सीधा 60,000 करोड़ गरीब की जेब से हुकूमत खींच ले रहे सर। गरीब की जेब से सीधा 60,000 करोड़ खींच ले रहे। इसके साथ ही साथ ये शराब पीने से जो इसे बुरी हालत या बुरी नुकसान पहुंचते, वही 50-60,000 करोड़ की बोझ बढ़ती है। रियासत आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तेलंगाना रियासत आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मेरे ख्याल में, मैं तो समझता हूं बदले क्या बोलते चीफ मिनिस्टर इसको तो बजट मुकाबले में बराबर करना चाहता हूँ शायद, मैं समझता हूं। तो अब ये 1,20,000 कर तक तो हो रहे, उनकी नजर में अभी 40-50,000 और खींचना बोल के होगा, मैं समझता हूं। किधर से किधर जा रहे हैं हुकूमत, किधर से किधर जा रहे हैं। बेहतर इसको प्रोहिबिशन बोल के निकाल दो, इसको एक आमदनी सेगा बोल के बोलो, आबकारी आमदनी सेगा, आबकारी आमदनी सेगा, वो बेहतर रहते ना। अगर आपको सही भी इससे जो आवाम के ऊपर जो बोझ बढ़ रहे, जो बुरी हालत हो रहे, उसको सुधारना चाहे तो पहले तो बेल्ट छापा बंद कर दो। हुकूमत ने जितने बेल्ट छापा है वो पूरा बंद कर दो, बेल्ट छापा को। एक चीज। दूसरे, हर एक लाइसेंस वाइन शॉप के साथ एक परमिट रूम दे रहे सर। अब तुम्हारा बार शॉप को और परमिट रूम को क्या फर्क है सर? तुम्हारा बार शॉप जैसा चल रहे, परमिट रूम में वैसे चल रहे। वो पूरा परमिट रूम बंद कर दो पहले। टाइमिंग जो है, तुम रात में 10 बजे तक सेल्स हो रहे हैं, 10-11 बजे तक, 6 बजे बंद कर, 12 बजे से 6 बजे, 6 बजे बंद करें तो 6 बजे तक जो खरीदने वाले खरीद लेते। 6 बजे के बाद में अगर पीने को और भी दिन लगे तो उसको माल नहीं मिलता, शराब, वो रुक जाना पड़ता। वो टाइमिंग जो है उसको 12 और 6 बजे तक कम करो। और जो है, जो हाईवेज के ऊपर, चाहे वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, जितने भी शराब वाइन शॉप्स है पूरे बंद कर। अगर तुमको सही भी आवाम की भलाई की चाहे तो, तुम आवाम की भलाई चाहे तो इन्हें बोलते अरे आंध्रा वाले कीमत बढ़ाए ना, इन्हें क्या बोलते हो, आंध्रा वाले बढ़ाए बोल के मैं भी बढ़ाना चाहता हूं। फिर आंध्रा वाले तो दुकानें कम कर दे रहे, आंध्रा वाले दुकानें कम कर रहे हैं, तुम भी कम करो। आंध्रा वाले टाइमिंग कम कर रहे हैं, तुम भी कम करो। ये हम हुकूमत से डिमांड है। न्यू मून स्कूल प्राणेपुल में आज स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके दौरान तलबा तालिबात ने साफ सफाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल के करस्पॉन्डेंट SM रब्बानी की क़यादत में सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में शऊर की बेदारी का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया था। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया प्रदीप कुमार मेहमान ख़ुसूसी थे। तलबा के अलावा असातिज़ा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मेरा नाम SM रब्बानी अहमद है, डायरेक्टर ऑफ न्यू मून हाई स्कूल। हम स्कूल 29 ईयर्स से चला रहे हैं और हमारा एम ये है कि यहाँ पर बिल्कुल स्लम एरिया है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, तब से चला रहे हैं। और उन लोगों को हम ये देना चाह रहे हैं कि भाई हर बच्चा पढ़े और हर बच्चे के लिए पढ़े ज़रूरी है। इसी वजह से हम आज उन लोगों को अपने स्कूल में, न्यू मून स्कूल में ओरिएंटेशन, SSC ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया है और बच्चे भी इसको बहुत अच्छी तरह से सुने हैं और कोऑपरेट भी किए हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ पेरेंट्स भी बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए और मॉर्निंग जितना जल्दी 4 o'clock को अगर उठा सकते हैं तो उठाइए और उनको पढ़ने के लिए बोलिए, ताकि बाकी के 12 घंटे पढ़ने के बजाय एक 3 hours अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की पढ़ाई बहुत काफ़ी डिफरेंट होती है।
इसलिए कि अर्ली मॉर्निंग उनका माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है। ये काम हर पेरेंट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेलफोन ज़्यादातर 10th क्लास के बच्चों को ना दिया जाए। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज ARK स्कूल राजेंद्र नगर के सालाना स्पोर्ट्स डे तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेल की सरगर्मी में भी कामयाबियां हासिल करे। उन्होंने कहा कि स्कूल की शानदार इमारत का होना स्कूल के अच्छे और मियारी होने की दलील नहीं हो सकता, बल्कि स्कूलों में खेलकूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने प्लेग्राउंड तामीर किए जाने चाहिए। उन्होंने खानगी तालीमी इदारों से कहा कि वो बल्दिया के प्लेग्राउंड्स और इंडोर स्टेडियम से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। నేను ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ని. ఇక్కడ స్కూల్లో ఈ రోజు నుంచి మేము స్పోర్ట్స్ మీట్ స్టార్ట్ చేసాము. ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు వచ్చారు. వచ్చి ఆ స్పోర్ట్స్ మీట్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పిల్లలకి మేము చదువులతో పాటు ఆటల్లో కూడా వారి ప్రావీణ్యతను బయటికి తీయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. ఇందు మూలంగా మాకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి గారు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారికి అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. స్పోర్ట్స్ మీట్ సందర్భంగా ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ని మేము వాస్తవానికి విన్లింపిక్స్ అని చెప్పి మేము దాన్ని నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఈ విన్లింపిక్స్లో పాల్గొంటున్న విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంతో మంచి మంచి గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జైట్మెంట్తో వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి స్పోర్ట్స్ మీట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. ఆ ఉత్సాహంలో తల్లిదండ్రులు ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అందుకు వారందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ 17 నుంచి అంటే అనగా ఈ రోజు నుంచి 21st వరకు జరుగుతుంది. 21st రోజు క్లోజింగ్ సెరమనీ ఉంటుంది. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और हंगामों के पस मंजर में अपोजिशन जमातों के 19 कायदीन ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस कानून को वापस लेने की हिदायत दें। अपोजिशन जमातों के कायदीन सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए जाने से कबल आहते पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास जमा हुए थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि नए कानून के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। अपोजिशन जमातों को दिल्ली और शुमाल मशरक़ी रियासतों में एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरियत पर गहरी तशवीश है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस बर्बरियत की मिसाल है, जहां पुलिस वुमेन हॉस्टल में घुसकर तालिबात को बुरी तरह मारा और पीटा। मोदी हुकूमत अवाम की आवाज़ को दबाने इस हद तक गिर चुकी है। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुकूमत को मालूम था कि अवाम का एहतजाज क्या रुख अख्तियार करने वाला है। आसाम में 5 अफराद हलाक हो गए और कई जख्मी हुए हैं। अपोजिशन के वफद में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, DMK के TR बालू, त्रिमुनाला कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और CPIM के सीताराम येचूरी शामिल थे। Because of the act is a very serious situation.
we fear that it may spread even further. We are anguished at the manner in which the police has dealt with peaceful demonstrations. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women students out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right as is ours to demonstrate. I think you all have seen that the BJP government, that the Modi government seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people and to us in a democracy. Please advise the government to withdraw this diabolical, divisive act. State as the head of the state, उनको गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, ये रिपील करना है, विड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस एक्ट only will affect the poorest of the poor. Nobody who is rich will be affected. So we've advised this, and as Madam has said, we have also apprised him of the students. There's an upheaval in the whole country. So that is what we've done, 12 political parties. India is the custodian of our constitution. And as the custodian of the constitution, we said that he cannot allow his government to violate the constitution and violate it in such a brazen manner. संरक्षक है हमारे संविधान की, हमारा संविधान का इस तरीके से नंगा उल्लंघन जो हो रहा है, ये स्वीकार नहीं है देश के लोगों को, हम सबको, विपक्षी पार्टियों को, राष्ट्रपति जी से, कि वो अपनी एडवाइस दे, अपनी सलाह दे उनकी सरकार को कि इस कानून को वापस ले। और ये हमारा आग्रह है राष्ट्रपति महोदय से, और यही आग्रह हम सभी लोगों ने वहां पर उनको बता के आ रहे हैं। दिल्ली की अदालत ने बीजेपी के मौतशुदा रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को, जिन्हें 2017 में एक खातून की अनौ में असमत रेजी का दोषी करार दिया गया है, सजा के तयन से मुतालिक अपना फैसला 20 दिसंबर तक के लिए महफूज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा के इजलास पर पेशी के दौरान जुमे को सीबीआई ने इस केस के मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कारकुन के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट डालने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन्स आउटपोस्ट पुलिस थाने के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि साजिद हुसैन मफरूर है। सुप्रीम पुलिस अभिषेक यादव ने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट डालने से एतराज करें। पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ को आज एक खुसूसी अदालत ने मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी। परवेज मुशर्रफ, जो फिलवक्त दुबई में है, दस्तूर को मुअत्तल करने और 2007 में इमरजेंसी नाफिज करने का कसूरवार पाया गया। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी बेंच 2013 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा केस की समाअत कर रहा था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।